Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 2nd and 3rd June 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली चाइना में रिपोर्ट हुआ है पहला ऐसा केस जो बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हुआ एक ह्यूमन बीइंग। चाइना रिसेंट टाइम में कह सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट बना हुआ डिफरेंट डिजीज का, चाहे कोरोना लीजिए चाहे कोई और डिजीज ले लीजिए, लगभग चाइना में ये सारे डिजीजेस जनरेट हो रहे हैं और ये एक नया सिम्टम्स है, ये एक नई प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिएगा, ये जो बर्ड फ्लू है इसका स्ट्रेन अलग है, ये एक अलग स्ट्रेन से है और इसका जो स्ट्रेन है H10N3। सो आज हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में आखिर ये बर्ड फ्लू क्या होती है, कितने स्ट्रेन्स होते हैं और विच स्ट्रेन्स यूज्ड टू इन्फेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स। सो चलिए देखते हैं। सो पहले न्यूज पे चलते हैं। रिसेंटली चाइना हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस विद द H10N3 स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेन का नाम है H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू इन जियांगशु प्रोविंस। सो ये स्ट्रेन है H10N3 और कहां पर सबसे पहला डिटेक्ट हुआ है, ये जियांगशु प्रोविंस चाइना। अब ये जियांगशु प्रोविंस चाइना में कहां पर है, देखिए ये रहा शंघाई और शंघाई के ठीक बगल ये रहा बीजिंग और बीजिंग के ठीक बगल में यहां पर है ये आपका जियांगशु, यहीं पर है। आपको याद होगा हुबेई और कोरोना वायरस, तो ये सारे रीजन यही है, तो लगभग शंघाई के ठीक बगल में है जियांगशु। न्यूज ये है कि H10N3 इज अ सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू 3 सब टाइप में आते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। ए जो टाइप होता है आमतौर पे सिर्फ बर्ड्स वगैरह को या एवियन या जितने भी आविस वगैरह होते हैं या बर्ड की स्पीसीज होती है उनको लगभग होता है। बी और सी जो सब टाइप है ये ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है, वो भी माइल्ड इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह नहीं होता है। तो अभी जो ये स्ट्रेन मिला है ये ए स्ट्रेन है, तो समझते हैं। तो H10N3 is a subtype of the influenza A virus which is commonly known as the bird flu virus. It is a low pathogenic or relatively less severe strain of the virus in poultry and the risk of it spreading on a large scale is very low. ध्यान रखिएगा, ये लार्ज स्केल में ये वायरस नहीं फैलता। कहने का मतलब ये है ये बहुत ही लिमिटेड इसका एक्सपेंशन होता है, लिमिटेड स्प्रेड होता है और बहुत कम जानवरों में होता है आमतौर पे, और ये उतने ज़्यादा सीवियरली ट्रांसमिट भी नहीं करता। Among animals it can spread through respiratory droplets। obvious सी बात है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होता है, सिमिलर टू फ्लू एंड कोविड-19 इन्फेक्शंस। तो कोविड-19 जैसा है वैसा ही ये भी होता है, इन्फेक्शन थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। There are many different strains of avian influenza in China. China is a hub of different types of different flus, और avian influenza भी चाइना से ही निकल के आया हुआ है।
इन चाइना एंड सम स्पोरेडिकली इन्फेक्टेड पीपल जनरली दोज वर्किंग विथ पोल्ट्रीज। तो जितने पोल्ट्री फार्म में जो लोग काम करते हैं लगभग वैसे ही उन लोगों को ही ये इन्फेक्शंस आमतौर पे होता है। हाउएवर देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस विद बर्ड फ्लू सिंस द H7N9 स्ट्रेन व्हिच किल्ड अराउंड 300 पीपल्स ड्यूरिंग 2016 एंड 17। आपको याद होगा 2016-17 में जो H7N9 जो बर्ड फ्लू इन्फेक्शन था वो बहुत लगभग 300 लोगों को मारा था। और वो जो स्ट्रेन था H7N9, ध्यान रखिएगा ये भी ए सब टाइप का स्ट्रेन है। ये होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो बर्ड फ्लू है इट इज ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा। सिंस आपको मालूम होगा बर्ड्स को आविस बोला जाता है और ये सिंस दिस इन्फेक्शन यूज्ड टू कॉज टू द बर्ड हेंस दे आर नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा एंड इज ए हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है अफेक्टिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स जैसे कि चिकन हो गया, टर्की हो गया, क्वेल हो गए, गिनिया फाउल हो गया एक्सेट्रा, एज वेल एज पेट बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स। Occasionally mammals including human may contracted avian influenza। कभी कभी इंसानों को भी हो सकता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली करे ह्यूमन बीइंग इसको। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द आइदर बर्ड्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या उनके स्क्रीटा वगैरह के कॉन्टैक्ट में अगर कोई इंसान आता है या फिर बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स वगैरह होते हैं फ्लैपिंग के चलते भी या स्क्रैचिंग के चलते भी कुछ वायरस वगैरह हवा के थ्रू मूव करके इंसानों के नेजल या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो उससे भी कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन होती है। टाइप के बारे में बात की जाए तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस आर ग्रुप्ड इनटू 3 सब टाइप्स दैट इज ए, बी एंड सी एंड ओनली टाइप ए इज नोन टू इन्फेक्ट एनिमल्स। ध्यान रखिएगा सिर्फ ए ही एनिमल को इन्फेक्ट करता है एंड इज जूनोटिक। ये एक तरह का जूनोटिक डिजीज होता है। जूनोटिक माने विच कैन इवन ट्रांसमिट ह्यूमन बींग्स। जूनोटिक माने वह डिजीजेस जो जानवरों को हुआ करती है बट नाउ दे आर ट्रांसमिटिंग इवन टू द या और इन्फेक्टिंग इवन टू द ह्यूमन बींग्स। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सब टाइप इंक्लूड अब 8 ए जो ए के सब टाइप हैं उसमें लगभग अलग अलग तो होते हैं जैसे कि H5N1, H7N9, H9N2 एंड H10N3 मीन्स H10N3। जबकि टाइप बी एंड टाइप सी मोस्टली इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड टिपिकली कॉज माइल्ड डिजीजेस। बी और सी जो सब टाइप होता है ये ह्यूमन को होता है और आमतौर पे ये माइल्ड डिजीज करता है ह्यूमन बींग्स को, उतना कुछ खास नहीं होता है इससे। आगे समझा जाए तो आखिर ये H और N का मतलब क्या होता है। देखिए आमतौर पे किसी भी वायरस का अगर H और N के जो H1N1 या H5N1 बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू अगर वो वायरस होते हैं तो बेसिकली इनको डिवाइड किया जाता है इनके 2 सरफेस प्रोटीन के हिसाब से। मतलब इन वायरस के ये जो स्ट्रेन्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, इसी स्पाइक्स पे 2 प्रोटीन मिलते हैं और 2 प्रोटीन्स जो होते हैं उनका एक का नाम होता है हेमाग्लूटिनिन जिसको HA बोला जाता है और दूसरा होता है न्यूरोएमिनिडेज। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हेमाग्लूटिनिन होता है ये जो स्ट्रेन, और ये जो आपको जो दिख रहा है प्रोटीन इट इज न्यूरोएमिनिडेज। Hence, depending upon the hemagglutinin and neuroaminidase, this virus is being named as H5N1। जैसे कि सपोज करिए अगर हेमाग्लूटिनिन 7 है और न्यूरोएमिनिडेज 9 है तो उस वायरस का नाम हो जाएगा H7N9। होप आपको समझ में आया होगा ये। दिस हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI जिसको हम लोग H5N1 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यही वो वायरस है जो बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था, लगभग 300 लोगों को। अब बहुत ज़्यादा लोग कहने का मतलब उस समय तो 300 लोग बहुत ज़्यादा थे। तो H5N1 आपके जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कॉज किया था और इसमें बहुत सारे लोगों को डेथ हुई थी एंड occurs mainly in birds and highly contagious among them। बर्ड्स में भी बहुत सारे ये हाईली कॉन्टेजियस था, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता था। एंड बेसिकली HPAI जैसे कि हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एशियंस जो है H5N1 इज स्पेशली डेडली फॉर पोल्ट्री। ये आमतौर पे पोल्ट्री को बहुत ज़्यादा डेथ करता था। तो आप देखिएगा कि उस समय जब उस 2016 और 17 के टाइम में आमतौर पे जितनी भी मुर्गियाँ वगैरह थी उनका एक ही सॉल्यूशन था, उनको कलिंग करके मतलब गर्दन तोड़ के उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। आमतौर पे यही हुआ करता था क्योंकि उस डिजीज से बचने का ये एक तरीका था। इम्पैक्ट क्या होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक कैन लीड टू डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर द कंट्रीज पर्टिकुलरली द पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाती है एंड फार्मर्स माइट एक्सपीरियंस अ हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी इन देयर फ्लॉक विथ रेट्स ऑफ ऑफन अराउंड 50%। तो लगभग जो जितने भी फार्मर्स हुआ करते थे जो पोल्ट्री में डील करते थे उनके अधिकतर जो क्रॉप्स होते थे वो डेड हो जाते थे, लगभग 50% की डेथ होती थी। तो ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए बहुत एक हार्मफुल डिजीजेज है।
आगे देखा जाए तो प्रिवेंशंस क्या है। देखिए प्रिवेंशंस के लिए स्ट्रिक्टली बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाना पड़ेगा, गुड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, एंड एसेंशियल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज आउटब्रेक। अगर कहीं ये डिजीज आउटब्रेक होती है तो उसे पहले ही वहीं पर सप्रेस कर देना पड़ेगा। इरेडिकेशन इफ द इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन एनिमल, ए पॉलिसी ऑफ किलिंग इन्फेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट एनिमल्स इज नॉर्मली यूज्ड इन एफर्ट टू रैपिडली कंटेन, कंट्रोल एंड इरेडिकेट द डिजीज। अगर कोई hen या मुर्गी वगैरह में इस तरह की डिजीज मिलती है तो उनको कर्लिंग करके या जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये चीजें। इंडिया के स्टेटस क्या है। फ्रेश केस ऑफ जो बर्ड फ्लू है रिसेंटली रिपोर्ट हुआ था दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, एंड जिसमें आपको देखा होगा बहुत सारे एमपी वगैरह के जो क्रो वगैरह थे उनकी डेथ हो गई थी, कॉजिंग अलार्म अराउंड द कंट्री। प्रीवियसली इन 2019 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा, जबकि H5N1 2019 में फ्री कर दिया था, इंडिया फ्री हो गया था, विच ऑल्सो हैज बीन नोटिफाइड टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। And the OEI is an intergovernmental organization responsible for improving animal health worldwide. It is a headquarter in Paris, France. तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो OIE, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में, फ्रांस। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये जो डिजीज है H10N3 ये भी कहीं ना कहीं चाइना से ही रिलीज होके आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली RDSO becomes the first institutions to be declared SDO under One Nations One Standard mission in BIS, Bureau of Indian Standard। अब ये RDSO क्या है, SDO क्या है और वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशंस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। चलिए न्यूज से पहले चलते हैं। न्यूज ये है कि रिसेंटली द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड ए स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस SDO अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो RDSO जो है बेसिकली ये रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली रेलवे के लिए प्रोडक्ट बनाता है और उसको एक स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसको सम्मानित किया गया है BIS द्वारा। RDSO took the initiative to seek recognition as a standard developing organizations under the BIS SDO recognition scheme। तो BIS की एक स्कीम चल रही थी recognition स्कीम, उसके तहत आपके RDSO को ये स्टेटस मिला हुआ है। आगे अगर समझा जाए द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन 2019 एंड इट वाज envisioned ऑन द लाइन ऑफ वन नेशंस वन राशन कार्ड स्कीम इन ऑर्डर टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। उसी तरह से ये भी है टू अटेन वन नेशन वन स्टैंडर्ड visions of the government of India, BIS launched a scheme which provide for recognitions of SDO। The recognition is valid for 3 years, 3 साल के लिए वैलिड होता है, and will require renewal after completion of the validity period। अगर validity period हो गया 3 साल तक मतलब एक्सपायर्ड हो गया तो उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करके गवर्नमेंट क्या चाहती है। देखिए आमतौर पे जो ये मिशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। तो बेसिकली अगर कुछ जैसे कि आप याद होगा मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव यही था कि जीरो डिफेक्ट का इनिशिएटिव, जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट्स इंसान बनाता है या इंडियन इंडस्ट्रीज बनाती है तो वो जो प्रोडक्ट बनाया वो जीरो डिफेक्ट रहे उसमें और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहे, तो वी कैन ऑल्सो कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। और यही जो प्रोग्राम था बेसिकली इट ऑल्सो गिव इसी के तहत ये RDSO को दिया गया। ऑब्जेक्टिव एग्रीगेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड डेडिकेटेड डोमेन्स स्पेसिफिक एक्सपर्टीज अवेलेबल विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री engaged in standard development in their specific sectors। The idea is to develop one template of a standard for one given products instead of having multiple agencies set it। तो जैसे सपोज कर लीजिए अगर एक तरह का कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का वही स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा नहीं है कि अगर पेन एक ही कंपनी का पेन अगर यहाँ पर एक अलग क्वालिटी है और दूसरी जगह कुछ अलग क्वालिटी है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो चाहे आप इंडिया में कहीं से भी खरीदे किसी भी दुकान से, वो आपको एक ही स्टैंडर्ड मिले। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इट इनेबल कन्वर्जेंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री रिजल्टिंग इन वन नेशन स्टैंडर्ड फॉर वन सब्जेक्ट। दिस विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग इन द लॉन्ग रन ब्रांड इंडिया एंड दिस विल ऑल्सो इंश्योर मार्केट रेलेवेंस फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है और रेलवे इस रिकॉग्निशन का हकदार भी था। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया है।
और उसमें कुछ अमेंडमेंट कराए गए हैं। क्या है ये, समझते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉडल टेनेंसी एक्ट टू बी सेट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू इनेक्ट लेजिस्लेशन और अमेंड लॉज ऑन रेंटल प्रॉपर्टीज। जो रेंटल प्रॉपर्टीज है उनके उनसे रिगार्डिंग कुछ लॉज वगैरह को अमेंडमेंट किए गए हैं। ये लॉज क्या है? द ड्राफ्ट एक्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2019। इस एक्ट का जो ड्राफ्ट है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2019 में ही उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया था। आगे का देखा जाए तो इसके कुछ प्रोविजन समझा जाए तो एक सबसे पहली प्रोविजन ये होगी कि हर एक रेंट की एग्रीमेंट में रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी होगा। कोई भी अगर रेंट लेता है या कोई रेंट देता है रेंट में या इधर कमर्शियल और फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, उसके लिए रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी होगा। मुर्जबानी या वर्बल एग्रीमेंट्स का कोई मायने नहीं होगा। मैंडेटरी फॉर देयर टू बी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रॉपर्टी ओनर एंड द टेनेंट्स। दूसरा, स्टैब्लिशेस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड रेंट कंट्रोल। रेंट कोर्ट वगैरह अलग से स्टैब्लिश किया जाएगा सो दैट फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। इट स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन एवरी स्टेट्स एंड यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट एंड इवन ए सेपरेट कोर्ट टू टेक अप टेनेंसी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जैसे दिल्ली वगैरह, वहाँ पर आमतौर पे जो डिपॉजिट्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो स्कीम होता है वो डिपेंडिंग अपॉन वो मकान मालिक क्या बोलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मकान मालिक एक ही रेजिडेंशियल के प्रॉपर्टी को करीब 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, उसी का कोई 2 महीने का मांगता है। तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज किया है। गवर्नमेंट में कहा, गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत क्या कह रहे हैं कि इट लिमिट्स द टेनेंसी एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 months रेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एंड टू ए मैक्सिमम ऑफ 6 months फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पज। 2 महीना सिर्फ आप रेसिडेंशियल पर्पज का मैक्सिमम ले सकते हैं और 6 months मैक्सिमम टू द नॉन रेसिडेंशियल पर्पज। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स दोनों के ही राइट को बताया गया इसके अंदर में। इसमें कहा गया है कि द लैंडलॉर्ड्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर एक्टिविटीज लाइक स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एक्सेप्ट दोज नेसेसिटेड बाय डैमेज कॉज्ड बाय द टेनेंट्स। अगर टेनेंट्स कुछ डैमेज करता है तो वो खुद करेगा। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल एंड पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज एक्सेट्रा। दूसरा, द टेनेंट्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर ड्रेन क्लीनिंग, switches and socket repair, kitchen fixture repair, replacement of glass panel in windows, doors and maintenance of gardens and open spaces among others. A 24-hour prior notice by the landlords। अगर लैंडलॉर्ड्स वहाँ पर रिपेयर कराना चाहता है तो 24 घंटे पहले उस टेनेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। Then only they can carry out the repair or replacement। मैकेनिज्म ऑफ वैकेटिंग क्या होगा? अगर घर से उसको खाली करवाना होता है तो इफ द लैंडलॉर्ड हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्टेटेड इन द रेंट एग्रीमेंट गिविंग नोटिस एक्सेट्रा एंड द टेनेंट फेल्स टू वैकेट द प्रीमिसेस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टेनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी, द लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू डबल द मंथली रेंट फॉर 2 months एंड 4 times आफ्टर दैट। 2 महीने के लिए वो रेंट को डबल कर सकता है और उसके बाद 4 गुना कर सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो टेनेंसी एक्ट में डाले गए हैं। आगे समझा जाए कवरेज क्या होगा। इट विल अप्लाई टू प्रेमिसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड एजुकेशनल यूज बट नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्ट है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशनल यूज के लिए प्रॉपर्टीज पर लागू होगा, ना कि इंडस्ट्रियल यूज। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में आप दे दिए किसी को मशीनरी लगाने के लिए तो उसको बोलिएगा 2 महीने के अंदर खाली कीजिए सारा मशीनरीज, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट ऑल्सो वोंट कवर होटल्स, ये होटल्स को भी कवर नहीं करेगा, ना ही लॉजिंग हाउसेस को, ना ही इंस वगैरह को, ये भी पॉसिबल नहीं है। इट विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसी एक्ट को नहीं अप्लाई होगा ये। नेक्स्ट, नीड क्या है एज पर सेंसस। देखिए ये इसका पूरा तामझाम का मतलब गवर्नमेंट ने जो ये चेंज किया है इसका ज़रूरत क्या था। देखिए ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट की ये टारगेट है कि एज पर सेंसस 2011 नियरली 1.1 करोड़ हाउस वेर लाइंग वैकेंट इन द कंट्री एंड मेकिंग दिस हाउसेस अवेलेबल ऑन रेंट विल कंप्लीमेंट द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 तक गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि सबके लिए घर होना चाहिए, इस स्कीम को लागू करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए या सक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट को घर चाहिए और ये घर इस टेनेंसी एक्ट के थ्रू काफ़ी हेल्पफुल होगा। Significance: the authority will provide a speedy mechanism in resolving dispute and other related matters, and it will help overhaul the legal framework and respect to rental housing across the country. It will enable certain creations of adequate rental housing stock for all the income groups, thereby addressing the issues of homelessness
अगर घर जिसका नहीं है उसका भी इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। इट विल इनेबल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग बाय ग्रेजुअली शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स द फॉर्मल मार्केट के तौर पर इसको शिफ्ट किया जा सकता है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए फिलिप टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेंटल हाउसिंग एज ए बिजनेस मॉडल फॉर एड्रेसिंग द ह्यूज हाउसिंग शॉर्टेज। इसमें लोग प्राइवेट पार्टी भी इसमें इस रेंटिंग के बिजनेस में आ सकते हैं। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। लास्ट ये चैलेंजेस क्या होगा। द एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट एज लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट रिमेन्स स्टेट सब्जेक्ट। ये स्टेट पे बाइंडिंग नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी इशू है क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है। Like in the case in RERA, Real Estate Regulation and Development Act, the fear is that the state may choose not to follow guidelines diluting the essence of the model act. अगर स्टेट ने कहा कि हमें ये एक्ट मंजूर नहीं है तो ये पूरा मिशन ही फेल हो जाएगा। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट को कहीं ना कहीं इसके कुछ चैलेंजेस हैं। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए अपने अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पेंशन रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स अमेंड किया है। तो जो पेंशन रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। क्या है अमेंडमेंट, समझते हैं थोड़ा। देखिए न्यूज़ ये है कि द रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इट्स पेंशंस रूल फॉर पुटिंग न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑफिशियल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आफ्टर रिटायरमेंट्स। तो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी से जो सिविल सर्वेंट्स रिटायर हो रहे हैं उनके ऊपर में कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब ये क्या रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। रिसेंटली पेंशन में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड रूल 8 clause 3 sub clause A of the CCS Central Civil Services Pensions Rules 1972. The center has notified Central Civil Servants Amendment Rule 2020. बैकग्राउंड इसका ये है, द सीड रूल्स वर फर्स्ट ड्राफ्टेड इन 1972। ये जो रूल है 1972 में ड्राफ्ट हुआ था एंड हैज बीन अमेंडेड 47 टाइम्स इसको अमेंड किया गया है। In 2008, Rule 8 pertaining to pension subject to future good conduct was first amended by inserting the condition that retired intelligence and security official will not publish any material that affects the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state or relations with foreign state or which led to incitement of an offense। अगर इस तरह के जो रिटायर्ड सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, आइदर रॉ हो गया, आईबी हो गया, जितने डिफेंस इंस्टॉलेशन से जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी बात को बाहर रिवील नहीं करेंगे। अगर वो रिवील करते हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल, उसको अमेंड क्या किया गया है, कहा यह गया है कि द ऑफिशियल रिटायर्ड आफ्टर सर्टेन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट विल नॉट बी अलाउड टू राइट एनीथिंग अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन। विदाउट अपने बिना परमिशन के वो लोग कुछ लिख नहीं सकते। The second schedule of the Right to Information Act 2005 covers 26 organizations including the Intelligence Bureau, RAW, Directorate of Intelligence, RNAW, Directorate of Revenue Intelligence, CBI, NCB, BSF, CRPF, ITBP and CISF। इनको restrict किया गया है। Next, it requires the retired officials to sign an undertaking, Form 26, and declare that without the prior approval of the competent authority, they will not publish any information related to the domain of the organization and obtained by virtue of my वर्किंग इन द सीड ऑर्गेनाइजेशंस। और ये भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आमतौर पे ये प्रोविजंस लगते हैं, अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट डिफेंस से इंस्टॉलेशन से जो रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आमतौर पे ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते। इसके लिए बहुत बार उनको प्रॉब्लम भी होती है। Next, the amendment expands the scope to include any information related to domain of the organization, mean any reference or information about any personnel and his designation and expertise or knowledge gained by virtue of working in that organizations। ये भी कहता है कि this also include his working experience also। लास्ट जो प्रोविजन ये है कि ये पर्पस क्या था इस अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट का पर्पस ये है कि द अमेंडमेंट वाज इन प्रोसेस फॉर अराउंड 4 years आफ्टर द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीट रिकमेंडेड इट। सेक्रेटरीट कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। असल में होता क्या है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे RNAW के हुए या इंटेलिजेंस एजेंसीज के या अदर सिक्योरिटी एजेंसीज के, कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट दे थिंक ऑफ राइटिंग बुक्स एंड अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में ही वो बुक किताबों में लिखना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे क्लासिफाइड मिशंस वगैरह भी होते हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। आमतौर पे हमारे पास इंडिया में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है अमेरिका की तरह कि कुछ सालों के बाद जितने भी क्लासिफाइड या मिशंस होते हैं उसको डिस्क्लोज किया
जिसको डिस्क्लोज किया जाता है। इंडिया कभी भी अपने मिशंस को डिस्क्लोज नहीं करता और इस चीज़ की सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट किया गया है। The move was prompted by concern arising out of the fact that some high-profile retired officers has written books on their tenure and some of this has revealed information. तो इसके चलते जो हमने कहा ये वो रीजन है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन, द अमेंडमेंट टू रूल 8 means that pension can be withheld or withdrawn if the pensioner disobeys the rule. And this change in the rule is likely to impact retired officers of security and intelligence organization who writes in newspaper and magazines or author books on their former organization and experience. तो ये उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन या एक्ट अमेंड किया गया है। सो ए गुड एक्ट, आमतौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत पहले करना चाहिए था। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे डीएनए के एक अलग सेगमेंट में, तब तक के लिए शुक्रिया।